चलिए चालू कीजिए रिकॉर्डिंग। Hello, friends, and a very warm welcome to this very interesting and dynamic session, which you are going to take in the concept of idealism. Obviously, it is linked with idea, consciousness, spirit, and much more. One can say it is a kind of a metaphysical concept, but here we are going to discuss it from the perspective of political science and international relations. And certain kind of ideas are very much helpful for even for general studies. So, as I have already shared with you, that all these small and brief discussions, they must be a precursor to a broader and a brighter understanding of the concept, whereby the learning skills are imparted in such a way that you are going to get a good score in writing. This is one of the ways which we had practiced, which we are inculcating through the pedagogy. So again, I am giving a chance to Ashik to bring his ideas in a consolidated form, and I will try as far as possible not to intervene and would be acting like audience, listener, student, and a critical observer. And rest of the ideas and learnings we are sharing in our different sessions, communications, meetings, conferences, and so on. So this is just one of the part. Let's enjoy and appreciate the effort and try to bring certain kind of constructive feedback. तो कोशिश है कि हिम्मत और मेहनत को वैल्यू दी जाए और वेस्टिंग एनी मोमेंट। थैंक यू वेरी मच। Yes. So last class we had discussed the ideology of liberalism, and first of all, liberalism se pehle one more ideology which came into being even in Indian subcontinent, also in Western countries, and that is idealism. अब इंडियन पॉलिटिकल थिंकर सच एज अगर बात किया जाए विथ रिगार्डिंग द रिलीजियस एस्पेक्ट, बुद्धिज्म हो गया या फिर वैदिक रिलीजन हो गया, they had the thinking about ideas, spirituality and other aspect. और हाँ, Yes, और वही क्यों हम जैनिज्म भी बोल सकते हैं, आजीविकास भी बोल सकते हैं। ajivikas, yes, ajivikas and other in 18th 19th century also the concept of idealism was also propounded by several other thinkers such as BC Pal, Lala Lajpat Rai, Bal Gandhar Tilak, Aurobindo Ghosh and even VD Savarkar. So idealism in India is different from idealism in Europe. So first we will discuss about idealism in Europe. तो इसमें तीन इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट इंडिविजुअल एंड थिंकर है। पहला इमैनुअल कांत। क्रोनॉलॉजिकल वे में चलते हैं, इमैनुअल कांत, हेगल एंड टी एच ग्रीन। तो इमैनुअल कांत और हेगल को बोला जाता है जर्मन आइडियलिज्म बिकॉज बोथ वेर फ्रॉम जर्मनी, एंड क्लासिकल आइडियलिज्म बोला जाता है ग्रीक बिकॉज ऑफ प्लेटो। प्लेटो थॉट अबाउट कि आइडियलिज्म is derived from the idea because it is basically the essence of human thinking, and from that every other thing is possible, right from daily work, labor, society, political structure, family, etc. All everything depend on idea. तो ही लेट डाउन द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर कि जो आइडिया है और इसको कैसे हम लोग ओवरऑल इसको और अच्छे तरीके से सोसाइटी के अंदर में प्रोफेस कर सकते हैं। दैट शुड बी वेरी beneficial for whole society, for example through the use of justice, theory of education, even communism of wife and property, अलग अलग आइडियाज। लेकिन जो हेगल और कांत थे, ही हैड अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट। हेगल टॉक्ड अबाउट कि जो आइडिया है इट इज अ सोल, इट इज अ एसेंस ऑफ यूनिवर्स, और उसी आइडिया से ही जो ह्यूमन का जो कॉन्शियसनेस है इट हैज़ इवॉल्व फ्रॉम अ प्रिमिटिव स्टेज टू अ मॉडर्न सिविलाइजेशन, और वही आइडिया से ही स्लोली ह्यूमन एज अ होल हैज़ बीन एबल टू को रिलेट with the society, and it has evolved and it has modernized the society on basis of that idea. तो जो आइडिया है एसेंस है, स्पिरिट है, कॉन्शियसनेस है, तो इसके ऊपर ही हेगल कमेंट करते हैं। कांत डिफरेंट है हेगल से, कैसे वो विल डिस्कस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टिंग फ्रॉम कांत वी डिस्कस कि जो कांतियन आइडिया है वो क्या है। वो बात करते हैं कि जो इंडिविजुअलिटी है वो दैट शुड बी वेरी मॉरल। हेगल बात करते हैं स्टेट के, लेकिन कांत बात करते हैं इंडिविजुअल के और सोसाइटी के मोस्टली।
और जो कांत के कॉन्स्ट्रक्ट में जो आइडिया है, इट इज टॉकिंग अबाउट द मॉरल ऑब्लिगेशन ऑफ अ इंडिविजुअल, कि कैसे वो उसको जिंदगी जीना चाहिए, डेली लाइफ डेली वर्क में कैसे वो एथिक्स अप्लाई कर सकते हैं। तो एक की कॉन्सेप्ट आता है कैटेगोरिकल एम्पेरेटिव। तो नाम में कैटेगोरिकल एम्पेरेटिव, दैट इज कि कोई कंडीशन के बिना भी आपको अच्छा काम करना है, कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। वॉट यू हैव वॉट यू हैव टू डू, वॉट यू हैव टू परफॉर्म टू द सोसाइटी। पहला क्या है कि आपका आप ऐसा काम करिए जैसे इट शुड बी इक्विवेलेंट टू द यूनिवर्सल लॉ। योर यू शुड ट्रीट ह्यूमैनिटी एज अ एंड, नॉट एज अ मीन्स टू सच काइंड ऑफ एंड। तो ह्यूमैनिटी को एज अ एंड मान के चलिए, आप ऐसा काम करिए कि आपको लोग रिस्पेक्ट करें, आपको एज अ रोल मॉडल देखे, आपको एज अ यूनिवर्सल लॉ गिवर ऐसे आपका स्टेटस हो। तो इट इज, तो ही टॉक्ड अबाउट कि जो मोरालिटी है इट इज इनबिल्ट इन ह्यूमन, और हर एक ह्यूमन जो आइडिया डिराइव हुआ है उसका एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव रहता है कि वो एक अच्छा एथिकल लाइफ जी सके। तो हीज आइडिया ऑफ एथिकल लाइफ इज ऑल्सो फ्रॉम सर्टेन कोट एंड कोट इंस्पायर्ड फ्रॉम प्लेटो, कि एथिकल लाइफ ही सबसे हाईएस्ट चीज होता है। दैट इज उसके बेसिस पर ही उन्होंने अलग अलग सोशल कॉन्ट्रैक्ट बताया। तो इनका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है लिबरलिज्म से। कैसे? लिबरल में सोशल कॉन्ट्रैक्ट इट वाज बिटवीन द स्टेट एंड इंडिविजुअल, ही टॉक्ड अबाउट सोसाइटी। वो बात की सिविल सोसाइटी क्रिएट करना चाहिए, जो देयर विल बी सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, और सोसाइटी अपने हिसाब से फिर तय करें कि व्हाट शुड be the duty of individual and also the what should be the obligation of the individual towards the society। तो ये टू थिंग। थर्ड विल बी सर कि जो आइडिया ऑफ एथिकल लाइफ है ही को रिलेटेड दैट विथ एवरीथिंग। सोसाइटी के अंदर में कैसे आइडियाज रहे जब आप इंडिविजुअल राइट्स इंडिविजुअल मोरालिटी का प्रमोट करें, कैसे पॉलिटिक्स मोरालिटी होना चाहिए। दूसरा, कंट्री के बीच में मोरालिटी होना चाहिए, दैट इज वाई ही टॉक्ड अबाउट कोऑपरेशन बिटवीन कंट्री, perpetual peace, and he was a prominent he was a propounder of liberal internationalism, Kant। He talked about human dignity as well as dignity of every country whether small or big। तो जब हम लोग बात करते हैं यूएन का, तो यूएन कहीं ना कहीं कोट एंड कोट इट इज डिराइव्ड फ्रॉम कांतियन फिलोसफी, लीग ऑफ नेशन और यूएन आज भी जो है। तो ही टॉक्ड अबाउट कि हर एक कंट्री के बीच में कोलैबोरेशन होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, सॉलिडारिटी होना चाहिए विद रिगार्डिंग टू हायर सेल्फ। तो तभी जाके हम लोग हायर सेल्फ अचीव कर सकते हैं। तो ही टॉक्ड अबाउट कि जो हायर आइडियाज ऑफ लाइफ है, हायर एथिकल वैल्यूज तभी अचीव कर सकते हैं जब तक आप एक मॉरल सेल्फ की तरफ आप अपना प्रोग्रेस कर सकें। ये ओवरऑल कांतियन आइडिया। So he talked about metaphysics and morality. We discussed that in categorical imperative. Then perpetual peace, key concept, morality in politics, and last is social contract with regarding to society. ये चार की कॉन्सेप्ट है कांतियन। देन रिगार्डिंग द हेगल, इनका क्या डिफरेंस है? ही ये बात करते हैं आइडियाज का, लेकिन ये बोलते हैं कि आइडिया अकेले में वो कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है। नहीं कि जो आइडिया है, ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि हर एक इंसान एक रैशनल बीइंग है, उनके अंदर में आइडिया होता है, और ही वर्क्स ही टेक्स एक्शन ऑन दोज आइडिया टू अचीव सर्टेन काइंड ऑफ रिजल्ट। आइडिया इनबिल्ट है। ओवरऑल जो आइडिया है इट कैनॉट क्रिएट सच काइंड ऑफ एक्टिविटी और एग्जाम्पल अनटिल अनलेस देयर इज अ काउंटर आइडिया। ही टॉक्ड अबाउट कि आइडिया अपने में सक्सेसफुल नहीं होता है अनटिल अनलेस देयर इज अ लॉजिकल रीजनिंग और देयर इज अ क्रिटिकल थिंकिंग ऑन दैट ऑल्सो। तो आइडिया और काउंटर आइडिया दोनों मिल करके एक सिंथेसिस बनता है। तो ही टॉक्ड अबाउट थीसिस। थीसिस एक आइडिया हो गया। एग्जाम्पल कि क्लाइमेट चेंज ओवरऑल एक आइडिया है अगर बोला जाए, तो उसका एंटी आइडिया होगा क्लाइमेट चेंज पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसका सिंथेसिस निकलता है कि क्लाइमेट चेंज हुआ है ओवरऑल पिछले कुछ हजार साल में ज्यादा हुआ है, पहले उतना ज्यादा चांसेस नहीं। तो सिंथेसिस हुआ दोनों आइडिया मिलकर, उससे निकल के फिर एक और एक एंटीथेसिस बनेगा, दोनों मिलकर फिर सिंथेसिस मिलेगा, और लास्ट में एक एब्सोल्यूट आइडिया बन सकता है। तो आइडिया अपने में पूरा नहीं है, इट रिक्वायर्स सर्टेन काइंड ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, इट रिक्वायर्स सर्टेन काइंड ऑफ एंटी आइडिया, और ओवरऑल तब जाकर के एक एब्सोल्यूट आइडिया और एब्सोल्यूट ट्रूथ बन सकता है। तो ही टॉक्ड अबाउट डायलेक्टिक आइडियलिज्म। अब यही मार्क्स ने अप्लाई कर दिया मटेरियलिज्म में, कि ही टॉक्ड अबाउट मार्क्स टॉक्ड अबाउट कि आइडिया नहीं है ओवरऑल ह्यूमन सिविलाइजेशन का बेसिक सोर्स, इट इज मटेरियल। जिस सोसाइटी जिस क्लास के हाथ में मटेरियल होता है
वही क्लास ओवरऑल डोमिनेट करता है पूरे ओवरऑल सोसाइटी को। दैट इज वाई ही टॉक्ड अबाउट डायलेक्टिक मटेरियलिज्म। डायलेक्टिक क्यों है कि जो डायलॉग बेसिस पर थीसिस, अब मैंने कुछ बोला आंसर, काउंटर, फिर सब काउंटर का जो सिंथेसिस निकलेगा उसका फिर वो वापस थीसिस बन जाएगा। तो ऐसे करके एब्सोल्यूट ट्रूथ पहुंच सकते हैं। तो ओवरऑल दिस इज काइंड ऑफ अ डायलेक्टिक आइडियलिज्म, ए कॉन्सेप्ट ऑफ हेगल। अब सेकेंड थिंग इज रिगार्डिंग की रियल विल एंड फॉर्मल विल। ही टॉक्ड अबाउट की जो इंडिविजुअलिटी है वो छोटा है, आप खुद के बारे में सोच रहे हैं। तो ही टॉक्ड अबाउट कि इंडिविजुअल खुद के बारे में सोच रहे हो, उसका मीनिंग होता है पर्टिकुलरिस्टिक ईगोइज्म। जो ईगोइज्म है आपका बहुत पर्टिकुलर है, अपने ऊपर है सिर्फ। लेकिन आप अगर फैमिली के बारे में सोचते हैं, फॉर एग्जाम्पल मदर्स लव फॉर चाइल्ड, फादर्स लव फॉर चाइल्ड, वो फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका भाव हो जाता है कि दूसरों के लिए करे, एक ड्यूटी बन जाता है। तो उसको बोलते हैं, और उसको ओवरऑल बोलते हैं ऑल्ट्रुइस्टिक सिस्टम। पर्टिकुलर इगोइज्म, पर्टिकुलर ऑल्ट्रुइज्म। पर्टिकुलर मतलब फैमिली, अपना फैमिली है, लेकिन ऑल्ट्रुइज्म है क्यों, क्योंकि आप किसी और के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन उससे बड़ा एक और आइडिया होता है, फॉर एग्जाम्पल सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी में हर एक फैमिली डिनोटेड रहता है, हर एक फैमिली का पार्ट रहता है ओवरऑल सिविल सोसाइटी के। और सिविल सोसाइटी का रोल मकसद ये रहता है कि प्रेशर ग्रुप ऐसे एक्ट करता है, एक सेल्फ इंटरेस्ट होता है। लेकिन वो फैमिली अलग अलग फैमिली को होल्ड करते हैं, उनका जो आइडियाज है, उनका जो एक एक इंटरेस्ट है वो प्रमोट करते हैं। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल। लेकिन ईगोइज्म है, ईगोइज्म क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ओवरऑल उनका भी कुछ सेल्फ सेंटर है। सेल्फ सेंटर नॉट बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल, बट बिकॉज ऑफ द होल सिविल सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल फिक्की, फिक्की बात करता नहीं है विद रिगार्ड टू डिफेंस, फिक्की बात करता है सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स की वजह से। तो सेल्फ सेंटर हो गया, फिर कॉमर्स की हिसाब से सेल्फ सेंटर हो गया, इसलिए वो यूनिवर्सल भी है लेकिन ईगोइज्म। लेकिन हाईएस्ट स्टेट जो है, हायर स्टेट, जिसमें ह्यूमन कॉन्शियसनेस, इंडिविजुअल, फैमिली, सिविल सोसाइटी एंड स्टेट जा सकता है, उस वो हायर स्टेट को बोलते हैं स्टेट। तो स्टेट को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर यूनिवर्सल ऑल्ट्रुइज्म। यूनिवर्सल भी है क्योंकि इट इज आर्बिट्रेटर ऑफ एवरी सिविल सोसाइटी, it is a final arbitrator, it is a it has the power, it has the authority to enforce laws and regulation, that is why it is universal। और altruism क्यों, क्योंकि स्टेट अपने बारे में नहीं सोचता है, स्टेट सबके बारे में सोचता है। एग्जाम्पल इंडियन स्टेट, वो सबका भला के बारे में सोच रहा है, चाहे वो कैपिटलिस्ट का रहे, चाहे वो सोशलिज्म रहे, चाहे गरीब रहे अमीर है, सबके बारे में बात कर रहा है। जब वो टैक्सेशन लाता है तो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में कमी लाता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो पीडीएस में मिला, तो ओवरऑल यूनिवर्सल ऑल्ट्रुइज्म। अब वो बात करते हैं जो सोसाइटी, जो ह्यूमन है, स्टार्टिंग में जो सेल्फ सेंटर था, वो धीरे धीरे उसका कॉन्शियसनेस बढ़ते गया, आइडिया इवॉल्व हुआ, तो लास्ट में डायलेक्टिक आइडियलिज्म के टुवर्ड्स में आप हाईएस्ट आइडिया पहुंच गया, वो है स्टेट। तो अकॉर्डिंग टू हेगल स्टेट रिप्रेजेंट द एथिकल आइडिया। एथिकल जो आइडिया वो स्टेट है, इंसान नहीं है, स्टेट है। दैट इज वाई हेगल का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है जॉन लॉक और बाकी सबसे। जॉन लॉक और लिबरलिज्म में फोकस रहता है इंडिविजुअलिटी पर, लेकिन हेगल बात करते हैं स्टेट का, क्योंकि स्टेट ही हर चीज आपको दे सकता है, वो बात करते हैं। स्टेट इज अल्टी एपिटोम ऑफ एवरीथिंग। ही टॉक्ड अबाउट कि स्टेट इज अ शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ, मार्च ऑफ द गॉड ऑन अर्थ। स्टेट का इतना बड़ा उन्होंने औहदा दिया है। तो क्यों, क्योंकि सिविल सोसाइटी को कॉम्पिटिटिव है, कॉन्फ्लिक्ट है, पॉलिटिकल पार्टी कॉन्फ्लिक्ट होता है बीच में आपस में, इंडी फैमिली के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन स्टेट में नहीं होता। स्टेट इज द हाईएस्ट फॉर्म जहां पर हर कोई कोऑपरेटिव कर सकता है। इट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रीडम। और अकॉर्डिंग टू हेगल फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल इज इक्वल टू फ्रीडम ऑफ स्टेट। स्टेट ही डिसाइड करेंगे हर एक चीज, क्योंकि आपके पास खुद पे आप सोच नहीं सकते हैं, तो आप स्टेट पर ही छोड़ दें कि स्टेट ही विल इंश्योर कि आपके पास राइट्स मिलना चाहिए, फ्रीडम मिलना चाहिए, कैसा लॉज होना चाहिए, हर एक चीज। तो ओवरऑल एक्चुअलाइजेशन ऑफ फ्रीडम जो होगा स्टेट ही कराएगा। तो इसलिए सर जो स्टेट है इसलिए आइडियल है अकॉर्डिंग टू। क्रिटिसिज्म भी है, जब स्टेट आइडियल है तो हो सकता है ना सर कि कोई स्टेट जो है उसी को गलत तरीके से यूज कर सके। फॉर एग्जाम्पल फासिज्म, नासिज्म। नासिज्म में एक वन मैन फ्यूरर, फासिज्म में स्टेट ही सुप्रीम है, टोटलिटेरियन स्टेट का बात होता है, स्टेट ही सुप्रीम। स्टेट चाहेगा उसके हिसाब से प्रोडक्शन होगा, मीन्स प्रोडक्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा, वो चाहे उसके हिसाब से वो वॉर में जा सकते हैं, नहीं भी जा सकते, तो स्टेट का रोल बढ़ जाता है। इसलिए स्टेट को अगर वर्शिप करेंगे तो एक तरह से ओवरऑल नेगेटिव एस्पेक्ट हो जाते हैं। तो इसका क्रिटिक बाद में पढ़ेंगे जब हैना एरेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे रिगार्डिंग द टोटलिटेरियन कॉन्सेप्ट। मार्क्स बात करते हुए रिगार्डिंग की जो आइडिया जो है आप कहाँ यूज कर सकते हैं मोस्टली। आइडिया सोल और ना एसेंस है, मटेरियल है, मटेरियल को आप छू सकते हैं, मैटर को छू सकते हैं, उसके हिसाब से
ओवरऑल जो सिविलाइजेशन है वो रन करता है, चाहे वो हड़प्पा हो गया इंडिया में, चाहे वो इंडिया ने क्रिटिक भी किया था इंडिया का, फ्यूडल हो गया, या ओवरऑल स्लेव और स्लेव ओनर के बीच में हो गया, या कैपिटलिस्ट और बोर्जो क्लासेस और वर्किंग वर्किंग क्लास के बीच में होगा। तो जिसका मटेरियल होगा वही डिसाइड करेंगे कैसा स्ट्रक्चर होगा सोसाइटी का। तो इसलिए वो बात करते हैं डायलेक्टिक मटेरियलिज्म का। तो ओवरऑल एक और एक की कॉन्सेप्ट क्रिटिसिज्म में आता है, अनलिमिटेड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन जब हम लोग बात किए थे रिगार्डिंग लिबरलिज्म में, देयर वाज अ लिमिटेड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। स्टेट का अधिकार है वो हर काम करवाए, लेकिन उनका भी कुछ ड्यूटी है, बनता है विथ रिगार्डिंग टू द सिटीजन, रिगार्डिंग विथ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जॉन लॉक, रोशियो एंड इवन हॉब्स में। लेकिन हेगल के कॉन्सेप्ट में आता है कि अनलिमिटेड है, स्टेट कुछ भी करा सकता है, कैसे भी करा सकता है। तो इसलिए वो उनका क्रिटिसिज्म होता है, क्योंकि मेनी ऑफ द अथॉरिटेरियन कंट्रीज वो डिराइव करते हैं स्टेट सेंट्रिक होते हैं। चाहे वो सीसीपी को ले ले, वो पार्टी सेंट्रिक है, पार्टी इज इक्वल टू स्टेट। तो वैसा हो गया, नॉर्थ कोरिया को ले ले, या फिर फासिज्म को ले ले। तो इसलिए हेगल को क्रिटिसाइज किया जाता है आज के टाइम में। लेकिन उनको क्यों माना जाता है? क्योंकि वो ही लेड द फाउंडेशन ऑफ डायलेक्टिक सिस्टम। और वो साइंटिफिक मेथड है कि आप एक कोई आप एक थीसिस प्रोवाइड करेंगे, एंटीथेसिस प्रोवाइड करेंगे, उसका सिंथेसिस होगा। इट इज यूज्ड इन साइंटिफिक डिस्कवरी, इट इज यूज्ड इन फिजिक्स केमिस्ट्री में, सब जगह यूज होता है इनका। तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इसमें डिफरेंसेस निकाल लिए थे कि दोनों में फर्क क्या है। पहली बात है कि एब्सोल्यूट आइडियलिज्म है हेगल में। क्यों? क्योंकि आपका जो आइडियलिज्म है, इसका जो एपिटोम है वो स्टेट है, वही डिसाइड करे। तो एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। लेकिन इमैनुअल कांट में स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, इंडिविजुअल का रोल है कि इंडिविजुअल के अकॉर्डिंगली आपको क्या करना चाहिए। इसमें बात होता है स्टेट के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, या फिर सोसाइटी के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए। इसमें बात होता है स्टेट स्टेट रिप्रेजेंट द एथिकल लाइफ। लेकिन आप इमैनुअल कांट बात करते हैं, अगर एक लाइन में बोला जाए दोनों में फर्क क्या है, तो इमैनुअल कांट सिर्फ इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं, इंडिविजुअल और सोसाइटी के बारे में। स्टेट के बारे में बात करते हैं, स्टेट शुड बी लिबरल, लेकिन इंडिविजुअल जो होगा उसको कैसे रहना चाहिए, मॉरल पर्सपेक्टिव कैसे होना चाहिए, एथिकल लाइफ कैसे होना चाहिए, उससे बात करते हैं। प्राइमरी इट हैज गिवन प्राइमरी टू सोसाइटी रादर देन स्टेट। हेगल मोस्टली बात करते हैं स्टेट के बारे में, इसलिए से दोनों में फर्क, दोनों का आइडियलिज्म में ये फर्क है। अब आते से बाद में टीएच ग्रीन, ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट आइडियलिज्म। लेकिन उनका आइडियलिज्म ये था कि आइडियलिज्म सिर्फ और सिर्फ डायलेक्टिक नहीं है, ना है कि वो इंडिविजुअल लाइफ जीने के लिए, लेकिन कैसे करे, हाउ इट कैन बी अचीव्ड। तो इसलिए बात करते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, बात करते हैं इसमें कि स्टेट का रोल यहाँ पर है कि आप प्रमोट करेंगे विथ रिगार्ड पॉजिटिव लिबर्टी अमंग द सिटीजन सो दैट दे कैन एक्चुअलाइज देयर फ्रीडम। कैसे? अगर किसी को पेंटर बनने का शौक है, अगर वो बहुत गरीब है या फिर ऐसा है, तो आप कुछ सब्सिडी दीजिए, कुछ प्रमोट। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में मुद्रा योजना, या फिर इंडिया में हम लोग विश्वकर्मा योजना का एग्जाम्पल बात करें, तो ये एक्चुअलाइज कर रहा है स्टेट विद रिगार्ड टू अचीविंग देयर ओन तो रिलाइजेशन। तो सेल्फ एक्चुअलेशन की बात करते हैं, उसमें एजुकेशन, वर्किंग आवर, लेबर राइट्स, लेबर रिफॉर्म, सबका बात होता है। अकॉर्डिंग टू हिम ट्रू फ्रीडम सिर्फ और सिर्फ खुद का लिबर्टी नहीं है, दूसरों का भी नहीं है। एक और है कि सिर्फ और सिर्फ बेसिक जिंदगी जीने का ट्रू फ्रीडम नहीं होता है। ट्रू फ्रीडम तब होता है जब आपके पास जो आप करने का क्षमता है, जो कैपेसिटी है, जो अपने जिंदगी में सोचे करने का, वो पूरा हो जाए। अगर आप सोचे कि मेरे को ओलंपिक में खेलना है और आपको स्पोर्ट्स खेलना है, लेकिन आप जबरदस्ती आप कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो ट्रू फ्रीडम नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं वहां पर कंस्टेंट हो गया। तो स्टेट का रोल है क्या, वहां पर कंस्टेंट को दूर करे। दैट इज वाई स्टेट का यहाँ रोल बनता है विद रिगार्डिंग टू रिमूव द कंस्टेंट सो दैट द इंडिविजुअल कैन सेल्फ एक्चुअलाइज। एंड स्टेट का रोल, स्टेट यहाँ क्यों बनता है, हम लोग जब बात करते हैं कांट के हिसाब से, तो वो सोसाइटी की बात करते हैं। हेगल बात करते हैं स्टेट इज एथिकल आइडिया। लेकिन अकॉर्डिंग टी एच ग्रीन स्टेट क्यों बनता है? स्टेट इसलिए बनता है क्योंकि हर एक इंसान है, वो धीरे धीरे जब हायर कॉन्स्टिट्यूशन में जाता है, तो दे डिमांड सर्टेन काइंड ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी के लिए राइट्स होना जरूरी है, और राइट्स होने के लिए स्टेट का होना जरूरी है। दैट इज वाई, जैसे से फॉर एग्जाम्पल इंडिया का कैसे डेमोक्रेटिक स्पिरिट बढ़ा है 1947 से अभी तक में। क्यों? क्योंकि ओवर द राइट्स जो है ना वो बड़ा ब्रॉडर हुआ है, लोग डिमांड किए। पहले आरटीआई नहीं है, आरटीआई 2005 में है। और पहले जन सूचना बिल नहीं आया था, 2019 में है राजस्थान में जन सूचना बिल। पहले ईडब्ल्यूएस का नहीं है, अभी है। रिजर्वेशन पहले नहीं है, अभी है। क्यों? ओवरऑल स्टेट जब एक बेसिक स्टेट बन गया था, लेकिन ओवरऑल ह्यूमन का जो कॉन्शियसनेस बढ़ा, बेसिक मटेरियल चीज पूरा हुआ, तो वो फिर हायर इवॉल्व सेल्फ में गए, फिर वो डिमांड किए। दैट इज वाई ह्यूमन नर्वस जैसे से बढ़ेगा, राइट्स बढ़ेगा, डिमांड ऑफ राइट्स बढ़ेगा, स्टेट का रोल बढ़ेगा। दैट इज वाई अकॉर्डिंग टू टी एच ग्रीन स्टेट का रोल इसी में है कि आपको कैसे कैपेसिटी
एक मॉरल कैपेसिटी पूरा कर सके, मॉरल ऑब्लिगेशन पूरा कर सके, ओवरऑल जो आपका खुद का कैपेसिटी बिल्डिंग है वो पूरा हो सके। तो अकॉर्डिंग टू हिम फ्रीडम क्या है? तो फ्रीडम टू एंजॉय विद अदर्स, मॉरल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स अदर, और कैपेसिटी टू डू थिंग्स हिमसेल्फ। तो ये तीन कॉन्सेप्ट आ गए रिगार्डिंग द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियलिज्म। एंड रिगार्डिंग उसी समय में 18 एंड 19 सेंचुरी में इंडिया में क्या हुआ? तो इंडिया में जो आइडियलिज्म है दे आर नॉट डायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम द वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट। इंडिया में जो आइडियलिज्म है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम Correct. नेशन, फ्रॉम ओन नेशन, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस कल्चर, ट्रेडिशन, कस्टम एक्सेट्रा। और अकॉर्डिंग टू सेवरल अदर जो प्रोमिनेंट Some kind of idea. थिंकर, ये सर सेवरल थिंकर, चाहे वो एग्जाम्पल अर्थशास्त्र में कौटिल्य हो गए, उनका हिसाब से क्या धर्म होना चाहिए, राजधर्म क्या होना चाहिए, फिर राजमंडल क्या होना चाहिए। उसके बाद फिर वी डिस्कस अबाउट आइडियलिज्म ऑफ अकबर, कि वो क्या चाहते थे, स्टेट कैसा होना चाहिए उनके हिसाब से, दीन इलाही का कॉन्सेप्ट आता है। फिर उसके बाद अगर अलग अलग इम्पोर्ट अशोका हो गए, धर्म, उनका धर्म पॉलिसी कैसा, उनका क्या आइडियलिज्म है विद रिगार्डिंग टू स्टेट, उनका क्या रोल है। वैसे ही करके बहुत रिच ट्रेडिशन आइडियलिज्म कर रहे हैं, वो आज का नया नहीं है वेस्टर्न कॉन्स्ट्रक्ट। तो इसलिए जो इंडिया में स्कॉलर है, जो इंपॉर्टेंट थिंकर है, वो क्रिटिसाइज करते हैं कि वेस्टर्न जो आइडियलिज्म इट इज मटेरियल सेंट्रिक, आइडिया सेंट्रिक। इंडिया में जो आइडियलिज्म इट इज स्पिरिचुअल सेंट्रिक। हम लोग अपना भला सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, ना स्टेट का भला बात कर रहे हैं, हम लोग सबका पूरा दुनिया कल्याण का बात कर रहे हैं। इसलिए हम लोग वासुदेव कुटुंबकम का बात करते हैं, सर्वधर्म संभव का बात करते हैं, तो ओवरऑल का बात करते हैं। तो और ओवरऑल ये इंडिया में जो आइडियलिज्म है इट इज मोस्टली जोग्राफिकल सेंट्रिक, नेशनलिज्म, कल्चरलिज्म, तो हर एक चीज इसमें आता है। तो 19th सेंचुरी में एक इवोल्यूशन आता है विद रिगार्ड टू आइडियलिज्म, स्वामी दयानंद सरस्वती का। और उस समय क्यों आता है? पहले लोग थे लेकिन देवर ओवरऑल नॉट, they were talking about idealism in a very different context और रीजनल एस्पेक्ट था उसमें, भक्ति मूवमेंट सब चीज था, लेकिन एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक स्ट्रक्चर तरीके से 1890 सेंचुरी में आया ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज और उनका जो थिंकर्स थे, और प्लस ब्रिटिश एजुकेशन है उसके बाद। तो स्वामी दयानंद सरस्वती उनका आइडियलिज्म क्या है वो बात करते हैं रिगार्डिंग जो एक किंग होगा, जो राजा होगा, ही विल बी गिवन राइट्स बाय द रिलीजन, लॉ धर्मा का अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। लॉ ऑफ मनु एक आइडियल रूल होगा इंडिया के अंदर में, और इंडिया में विडो रिमैरिज हो सकता है, चाइल्ड रिमैरिज नहीं होगा, आइडोलेट्री नहीं होगा, रिफॉर्मेशन ऑफ कास्ट होगा। आप ही टॉक्ड अबाउट बैक टू वेदास, वेदास अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू हिम आइडियलिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम रिलीजन, अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म डिराइव्ड फ्रॉम धर्मा एक्सेट्रा। तो देन लाला लाजपत राय, इनको शेर पंजाबी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू हिम स्वराज्य, वो बात करते हैं स्वराज और सोल, जैसे सोल ह्यूमन के अंदर में होता है वैसे ही एक नेशन का स्वराज्य। तो ही अकॉर्डिंग टू हिम जो स्वराज्य है वो सिर्फ पॉलिटिकल स्वराज नहीं है, इकोनॉमिक और एक ओवरऑल सोशल स्वराज भी होना जरूरी है। तभी जाके हम लोग एक एक ओवरऑल जो सेल्फ सफिशिएंसी वो अचीव कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हिम स्वराज क्या होना चाहिए? तो स्वदेशी एजुकेशन दैट शुड बी इंडिजिनस, मोरालिटी इन पॉलिटिक्स, और ओवरऑल जो एक इकोनॉमिक स्वराज जिसमें सेल्फ सफिशिएंसी होगा, इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। इवन आफ्टर 1947 लैंडलॉर्डिज्म को खत्म करेंगे, कैपिटलिज्म का मोनोपोली को खत्म करेंगे, सोशलिज्म एस्पेक्ट में हम चलेंगे, तो वो स्वराज हो सकता है अकॉर्डिंग टू। और ही क्रिटिसाइज कि लॉ ऑफ मनु के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा भारत। क्यों? क्योंकि 1980-90s में अकॉर्डिंगली उस समय एक साइंटिफिक एस्पेक्ट में वो इवॉल्व भी हो रहा था। साइंटिफिक एजुकेशन होना चाहिए, इंग्लिश एजुकेशन भी होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम कल्चर एजुकेशन और ओवरऑल स्पिरिचुअल एजुकेशन होना चाहिए। तो ही टॉक्ड अबाउट सिंक्रेटिज्म, वेस्टर्न और इंडियन स्कूल ऑफ थॉट। देन बाल गंगाधर तिलक, उनके दो इंपॉर्टेंट लिटरेरी है, मराठा एंड केसरी, जो मराठी और इंग्लिश में। और ही टॉक्ड अबाउट उनका आइडियोलॉजी, इनके कोड। यस ही टॉक्ड अबाउट स्वराज इज बर्थ, इसमें बर्थ राइट। तो अकॉर्डिंग टू स्वराज मतलब क्या हुआ? स्वराज सिर्फ बर्थ राइट है, मतलब कि वो नेचुरल है, वो ऑर्गेनिक है, वो हर एक इंसान के अंदर। वह स्वराज उनके लिए सिर्फ और सिर्फ वो नहीं है जो अचीव होगा फ्रॉम ब्रिटिशर। अकॉर्डिंग टू स्वराज ऑल्सो मीन्स डिसिप्लिन,
स्वदेशी, सेल्फ रूल, खुद का भी। तो ही टॉक्ड अबाउट कि जो रिलीजन है वो एक इंपॉर्टेंट प्ले करता है विथ रिगार्डिंग टू पैसिव रेजिस्टेंस। एंड कैसे he talked about he instituted the important celebration of शिवाजी फेस्टिवल, गणपति फेस्टिवल, और रिलीजन को एज अ मास पॉपुलेशन कैसे यूज किया जाए, वो बाल गंगा तिलक का आइडियलिज्म इसके अंदर में आता है। देन बीसी पाल, विपिन चंद्र पाल, he also gave the same aspective of कि जो आइडियलिज्म है, इट इज टू अचीव द गॉड। स्वराज्य है, स्वराज्य इट इज लाइक अ सोल। जो इंडिया है इट इज लाइक मदर गॉडेस। तो उन्होंने कनेक्ट किया। तो ओवरऑल जो बाल लाल पाल, तीनों तीनों का जो ओवरऑल आइडियलिज्म है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम कल्चर नेशनलिज्म, स्पिरिचुअल नेशनलिज्म। द नेशनलिज्म इज ऑर्गेनिक, वो इनबिल्ट है, वो हमेशा रहता है, वो आर्टिफिशियल नहीं है, ऑर्गेनिक है वो। थ्योरी ऑफ द स्टेट है, इट इज ऑल्सो डिराइव, डिविनिटी भी है, मैकेनिक्स भी है। मैकेनिक्स क्यों? क्योंकि ओवरऑल मॉडर्न सेंट्रिक सिस्टम है, स्टेट जो है मॉडर्न है, पुलिस सिस्टम मॉडर्न है, जुडिशरी मॉडर्न है, रूल ऑफ लॉ थोड़ा जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट मॉडर्न, लेकिन आइडिया ऑफ इंडिया जो नेशन है वो ऑर्गेनिक है, वो हमेशा से रहा है। तो अकॉर्डिंग टू हिम आइडिया ऑफ स्वराज तभी पॉसिबल है जब हर एक व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं सेम चीज। वही बात करते हैं स्वदेशी का, सेल्फ रूल हो गया, सेल्फ हेल्प हो गया, पैसिव रजिस्टेंस हो गया, तीनों बात करते हैं। तो तीनों के लिए ओवरऑल प्लस माइनस आइडियलिज्म डिफरेंट। अब बहुत इंपॉर्टेंट जो आईपीटी में क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी रिगार्डिंग श्री अरबिंदो, उनका क्या स्वर है? ही इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर इन आइडियलिज्म इन इंडिया, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर इन 20th सेंचुरी रिगार्डिंग आइडियलिज्म अराउंड द वर्ल्ड। वो वंदे मातरम, एशियन गीता, आइडियल्स ऑफ गर्म होगी, ये बुक वो पब्लिश किए थे। 5 कॉन्सेप्ट है इसमें, पांचों बारे में बात करें। पहला इंटीग्रल नेशनलिज्म, स्पिरिचुअल नेशनलिज्म, इंटीग्रल योगा, स्पिरिचुअलाइज लीडरशिप, नेशनलिज्म विच इज ऑर्गेनिक, वर्ल्ड के यूनिटी का, सिंथेसिस बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, इसी को बात करते हैं। ओवरऑल 5 से 6 है इसमें। अब एक एक बार बात करते हैं। इंटीग्रल नेशनलिज्म मतलब क्या होगा? अकॉर्डिंग टू हिम नेशनलिज्म जो है वो डिवाइसिव नहीं है। ही क्रिटिसाइज द वेस्टर्न कॉन्ट्रैक्ट, वो बात करते हैं एथनिक है, वो बात करते हैं इटालियन नेशनलिज्म हुआ, जर्मन नेशनल, इट इज बेस्ड ऑन रेस, एथनिसिटी। इंडिया में जो नेशनलिज्म है इट इज कल्चर डोमिनेटेड, इट इज इंटीग्रेटिव, और हर एक कल्चर के बीच में जो जो एक सिमिलैरिटी है उस पर हम फोकस करते हैं रादर देन डिविजिव पॉलिटिक्स। तो जो नेशनलिज्म इट इज इंटीग्रेटिव। स्पिरिचुअल नेशनलिज्म क्यों? क्योंकि जो इंडिया में जो है, भारत है, वो असम हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, उसके बीच में एक कॉन्स्ट्रक्ट हो गया, उससे कनेक्टिविटी हो, स्पिरिचुअली है कनेक्टिविटी। चाहे वो गीता से उठाया जाए, चाहे वो भक्ति से उठाया जाए, हर जगह से जो बात होता है वो सोल, वो ट्रांसेंडेंटल, वो स्पिरिचुअलिज्म का बात होता है, इसलिए स्पिरिचुअल नेशनलिज्म बात होता है, जो लेकिन वेस्टर्न के अंदर में नहीं है, वेस्टर्न नेशनलिज्म में नहीं। देन वो बात करते हैं कि जो योगी योगी है उनका भी कोई ना कोई दायित्व बनता है, उनका भी ना कोई ड्यूटी बनता है टुवर्ड द सोसाइटी एंड स्टेट। उनका क्या ड्यूटी है कि जो पॉलिटिक्स में वो एक मोरालिटी लेकर आ सकते हैं। पॉलिटिक्स शुड बी वेरी स्पिरिचुअल, पॉलिटिक्स शुड बी वेरी मॉरल, एथिकल, और अकॉर्डिंग टू द जो धम्म है वो चल सके। तो स्पिरिचुअलाइज लीडरशिप कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं कि हर कोई जो पॉलिटिशियन होता है उनको एक तरह से स्पिरिचुअल ट्रेनिंग होना चाहिए, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, तभी वो भला कर सकते हैं बाकी जनता का। देन ही टॉक्ड अबाउट नेशनलिज्म विच इज ऑर्गेनिक। वी हैव डिस्कस की नेशनलिज्म है वो क्यों ऑर्गेनिक है, क्योंकि जो हर एक इंसान है उससे कहीं ना कहीं बिलोंगिंग होता है, चाहे वो धरती से, चाहे वो कस्टम से, ट्रेडिशन से। वो जो हर एक जो हर एक जो फैमिली हो गया वो कहीं ना कहीं किसी इतिहास से जुड़ा हुआ है। वही जब इतिहास बड़ा होते रहता है इट बिकम वेरी वाइडर एंड वाइडर, और स्लोली इट बिकम्स वेरी ऑर्गेनिक। इसलिए जो नेशनलिज्म वो हमेशा रहता है, वो इट इज नॉट अ मैकेनिक फॉर्म, और वो हमेशा रहता है। लेकिन जो स्टेट है अकॉर्डिंग टू हिम अरविंदो, इट इज मैकेनिस्ट। स्टेट क्यों मैकेनिक है? क्योंकि स्टेट आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है। नेशनलिज्म सही है, नेशनलिज्म ऑर्गेनिक है, सोसाइटी ऑर्गेनिक है, लेकिन स्टेट का रोल सिर्फ यही है कि वो ड्यूटी कर सके, वो जस्टिस दे सके, वो राइट दे सके जनता को। वो एग्जाम्पल हो गया। देन ही टॉक्ड अबाउट सिंथेसिस ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। ही क्रिटिसाइज वेस्टर्न सिविलाइजेशन ऑन वेरी अदर एस्पेक्ट। मटेरियलिज्म है, इंडिविजुअलिज्म है, वहाँ पर कहीं ना कहीं डार्क थिंकिंग, वहाँ पर इंपीरियलिज्म है, कॉलोनाइजेशन, लेकिन एट द सेम टाइम ही डिस्कस कि वो क्यों आगे इतना बढ़ पाया। क्योंकि जो सोशल डिवीजन हो वहाँ पर कम फोकस किया गया, वहाँ पर साइंटिफिक डिस्कवरी पर फोकस किया गया, वहाँ पर साइंटिफिक एजुकेशन फोकस किया। तो ही टॉक्ड अबाउट साइंटिफिक एजुकेशन उठाए और अपने जो नेशनलिज्म है, स्पिरिचुअल नेशनलिज्म, इसको इंटीग्रेट करा। तो सिंथेसिस होना चाहिए, फैमिली सिस्टम अपना होना चाहिए, वहाँ का नहीं होना चाहिए।
अपना यहाँ कलेक्टिव माइंडसेट हो गया, अपना धमा होना चाहिए, लेकिन वहाँ के साइंटिफिक डिस्कवरी लेके आए। तो ही टॉक्ड अबाउट वर्ल्ड यूनिटी। ही डिस्कस कि जो हर एक कंट्री है, चाहे वो बड़ा है छोटा रहे, उनका हर एक कंट्री का एक मॉरल ऑब्लिगेशन बनता है दूसरे कंट्री का अकॉर्डिंग। दैट इज वाई ही टॉक्ड अबाउट कि लीग ऑफ इलेक्शन ऐसा होना चाहिए। और वो 14 पॉइंट जो वुड्रो विल्सन है उनके और बात की इंडिया अप्लाई होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेल्फ गवर्नेंस, वो बात करते हैं लीग ऑफ इलेक्शन सक्सेसफुल होना चाहिए था। तो ही वॉज अवेयर रिगार्डिंग द जियो पॉलिटिक्स दैट वर गोइंग ऑन इन दैट पीरियड। एंड अकॉर्डिंग टू हिम, Sanatan Dharma, it is the essence of nationalism in India. Without Sanatan Dharma, it cannot exist. वो बात करते हैं। और क्रिटिसाइज भी किया हेगेलियन को। हेगेलियन क्रिटिसाइज क्यों किया? क्योंकि वो बात की वो स्टेट में फोकस करे हेगेल, इसलिए। अरबिंदो का जो आइडियलिज्म वो डिफरेंट है, वो स्पिरिचुअल आइडियलिज्म है। हेगेल के स्टेट सेंट्रिक है, वो स्टेट ही करेगा। लेकिन जो अरबिंदो बोलते हैं कि वो इंसान है डिफरेंट, इंसानी अपने में कंप्लीट ऑटोनॉमी है। देन वी हैव डिस्कस इंटर हो गया। एंड अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल स्ट्रगल, अकॉर्डिंग टू हिम क्या होना चाहिए? ही टॉक्ड अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल एजुकेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल एजुकेशन, वो सब होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम ग्रास रूट लेवल पर काम होना चाहिए। दैट इज वाई ही डिस्कस कि वॉयलेंस कैन बी यूज है, वॉयलेंस कैन बी यूज अकॉर्डिंग टू द गीता। वॉयलेंस कैन बी यूज बट इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, टारगेटेड ओरिएंटेड। पैसिव सत्याग्रह होना चाहिए, डिफेंसिव रेजिस्टेंस होना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू हिम फ्रीडम मतलब क्या? बोले कि फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम तो है ही, लेकिन अल्टीमेट रियल फ्रीडम क्या हुआ? रियल फ्रीडम तभी हो सकता है जब आप हर एक सोसाइटी के अंदर में जाति भेदभाव हटाएंगे, लैंग्वेज के हिसाब से आप डिस्क्रिमिनेशन हटाएंगे, ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट ऑफ जो सेल्फ है उसको बढ़ाएंगे, राइट सबको पहुंचा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस दे सकते हैं, ओवरऑल जो हर एक कैपेसिटी डेवलपमेंट हर एक इंसान कर सकता है, वो हो गया फ्रीडम। फ्रीडम ऑफ और नेशन और फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंट है। लेकिन जो हेगेल है वो फ्रीडम ऑफ स्टेट का बात करते हैं, वो स्टेट का आइडल फॉर्म बात करते हैं, ये एथिकल लाइफ का बात करते हैं। तो जो कांतियन फिलॉसफी है वो थोड़ा सा ज्यादा है औरबिंदो में, अगर एज कंपेयर टू हेगल, ये वी कैन डिस्कस। तो वी हैव कंक्लूडेड सर की रिगार्डिंग कि वेस्टर्न नेशनलिज्म जो होता है वो मटेरियलिज्म है, लेकिन इंडियन नेशनलिज्म स्पिरिचुअलिज्म है। तो अगर की डिफरेंस है तो ये। एंड लास्ट है सावरकर, राइट? तो सावरकर आई टॉक्ड अबाउट नेशनलिज्म ऑन द बेसिस ऑफ हिंदू राष्ट्र, जो पितृभूमि और पुण्य भूमि, पुण्य भूमि में होली लैंड, पितृभूमि मतलब फादरलैंड, दोनों अगर है तो आप हिंदू कहलाएंगे। तो हिंदुत्व मतलब मैनिफेस्टेशन ऑफ थॉट एक्टिविटी रिगार्डिंग हिंदूज, और एक सिविलाइजेशन है, कल्चर है, उसको आप प्रोटेक्ट करेंगे। तो ही टॉक्ड अबाउट भेदभाव हटाना चाहिए रिगार्डिंग जाति, संस्कृति को बचाना चाहिए, राष्ट्र को बचाना चाहिए, लैंग्वेज और बाकी रीजनल और एथनिसिटी जो भेदभाव हटाना चाहिए। ही वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम मजीनी। तो बट many of the ideas of Savarkar were deliberately used by certain section of society, or overall he is also been criticized for promoting the spirit of communalism, quote unquote, however soft it may be. तो जो आइडिया ऑफ इंडिया है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सेवरल अदर थिंकर, जिसमें सावरकर भी हैं और गोखले भी हैं, और जो हम लोग बात किए लिबरलिज्म में दादा भाई नौरोजी भी, और अभी जो हम लोग बात किए लाल बाल पाल, और ओवरऑल जो दयानंद सरस्वती हो गए। तो आइडियलिज्म एंड लिबरलिज्म वी हैव डिस्कस। तो करंट कॉन्टेक्स्ट में लास्ट थिंग सर कंक्लूड Okay. करें कि अभी आइडियलिज्म कैसे फॉलो होता है। इंडिया का जो प्रियम्बल है वो एक आइडियल थॉट दिखाता है, क्या करना चाहिए अपने भारत को, क्या करना चाहिए। डीपीएससी आइडियल थॉट बताता है। तो आइडियलिज्म आज भी इंपॉर्टेंट है। विदाउट आइडियलिज्म सोसाइटी को मॉरल सेंस नहीं मिलता। I agree. Can we move with the questions, please? यस सर। अब जैसे मान लीजिए अकॉर्डिंग टू श्री अरबिंदो स्वराज इज नेसेसरी कंडीशन फॉर इंडिया टू अकॉम्प्लिश इट डिस्टेंट गोल। तो जो आपने ऊपर बताया, जो हमने डिस्कस किया, वो ऐसा उसी लाइंस में। कैन वी हैव मोर क्वेश्चंस और दीज आर द ओनली यस क्वेश्चंस? सर, आइडियलिज्म में पूछा अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है, वो बस नाम है हेगेल और सॉरी और बंदे, तो मैंने ओवरऑल ले लिया था पूरा कॉन्सेप्ट। हाँ, नहीं अच्छा किया। तो अब जैसे हमने श्री अरबिंदो के जो कल्चरल नेशनलिज्म पे व्यू है, या फिर नेशनलिज्म इज नॉट मेयर ए पॉलिटिकल प्रोग्राम बट ए वे ऑफ लाइफ लाइक रिलीजन, इस पे बोलिए। कैन यू थ्रो सम लाइट यस। on in few second, couple of seconds I should say, or say max 1 minute. The यस अकॉर्डिंग nationalism टू is अरबिंदो not mere a political program, इट इज, way of life like यस, religion. Well, how you gonna write nationally this? according to, yes, nationally according to Aurobindo Ghosh is not, it is organic, it is a way of life like सनातन धर्म, क्योंकि रिलीजन यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, सनातन में हिंदी में लिखा हुआ पर, तो यहाँ पर सनातन धर्म, इट इज डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म।
क्यों? वहाँ पर स्वराज का बात होता है, इट इज़ अ पॉलिटिकल प्रोग्राम। वहाँ बात होता है सेल्फ रूल, वहाँ बात होता है ओवरऑल वोटिंग, एडल्ट फ्रेंचाइज, सेम एथेनिसिटी। बट अकॉर्डिंग टू अरबिंदो घोष, nationalism is organic, it is derived from tradition, it is based on spiritual nationalism, it is from a cultural affinity और इंटीग्रल नेशनलिज्म। तो वी विल डिस्क्राइब करने से दो लाइन में से, इट इज नॉट मेयरली पॉलिटिकल प्रोग्राम है, वो वाइडर है, वो ब्रॉडर है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी है इंडिया में, और ऑर्गेनिक है तमाम। जब अभी हम नेक्स्ट लेवल करेंगे, then we are going to pick up, quotes and books and references. That is all what we need to do. Once we are going to write answers, we'll bring those ideas into it, and we will try to consolidate it further. So wonderful. I think very simply, and I'm not saying कि बहुत सारे ideas को हमने put up कर दिया, but in a simple way, in a preliminary way, it was a good overview. इसके अब नेक्स्ट लेवल पे हम जा सकते हैं, जहां पर हम ये सारे आइडियाज को यूज कर सकें, और हो सकता है कि कुछ आइडियाज को, कुछ सेंटेंसेस को हम कोई वोकैबुलरी से, किसी की वर्ड से हम रिप्लेस कर सकें। सो विद दिस आइडिया एंड विद द बिलीफ कि जैसे अब कार्ल मार्क्स की बात है, यहाँ क्वेश्चन हमने तो डिस्कस नहीं किया, हम पहले कर चुके हैं। द हिस्ट्री ऑफ ऑल देयर टू एग्जिस्टिंग सोसाइटीज, द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, या हेगल का जो थ्योरी है डायलेक्टिकल आइडियलिज्म का, तो वो डायरेक्टली उस तरीके से पूछ रहे हैं, तो वो हमने उसके लेने की जगह हमने एक ओवरव्यू लिया, और हमने वेस्टर्न और इंडियन पॉलिटिकल थॉट को एक कॉन्ट्रास्टिंग वे में पुट अप करने की कोशिश की। हुआ आई बिलीव दैट इट इज गोइंग टू हेल्प, इट इज गोइंग टू गिव कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी, एंड गोइंग टू गिव यू मोर belief, and I should say self belief, so as to move further with lot of confidence. So thank you very much, one and all, with the same idea and the belief that there is no shortcut to smart work, and with commitment and honesty, a long-lasting relationship is always cultivated, which is going to help one, not only one's own life meaningful, but whole lifetime is full of inspiration, because these ideas which we have just discussed in terms of Indian and Western political thought, they also give us inspiration that certain values are beyond individual greed. Where there is individual greed, it is not going to help. So it was a good discussion, and I believe and hope it is going to help us all. Thank you very much. Keep watching and working on your goals with uncertainty.